ओम सूर्याय नमः। हमारा पंच लाइन बन गया ये अपॉर्चुनिटी राजस्थान को बहुत कम मिलती है। हम लोग इसको हार्नेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में और कैसे आ सकता है, डिफरेंट विंग्स में कैसे आ सकता है, ये सेशन उसी को टारगेट करते हुए है। हमारे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स बोलते रहते हैं कि आप दिल्ली में कोई सेशन करो, तो हमने अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली कि जिसको राजस्थान के बारे में कुछ भी जानना है, हमारी टीम से मिलना है, मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सीख कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज इस सेशन को मैं शुरू करता हूं और हमारे आरएसए के चेयरमैन सुमन कुमार जी को इनवाइट करता हूं, वो आएँ और थोड़ा इस सेशन के बारे में इंट्रो दें ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए। सुमन जी। Good afternoon. So today is the first day of Navratra. As we all know, this is the most auspicious day to start something new or to reinforce something which is already going on. At RSA, we could not have found a better day to announce and put in front of you Advantage Rajasthan. Advantage Rajasthan is kind of an initiative, or I would rather say is a mission to highlight what are the natural strengths, natural advantages of Rajasthan in solar sector, in solar manufacturing, in solar project development, multiple ancillary services. And the initiative is being led by Rajasthan Solar Association and supported by Government of Rajasthan, and all of Government of Rajasthan agencies are already contributing. RREC, which is the nodal agency, is already there with us. MD of RREC is with us on this panel today. In terms of what does it contain, so we believe that Rajasthan, through solar sector, it can create a virtuous circle which will benefit the entire industry and the state. So it will have three important pieces. The first piece is going to be project development, because Rajasthan has plenty of land, the best solar irradiation in the country, very supportive government policy. We already have a Rajasthan solar policy, and I believe a new, more updated launched very soon, and a very supportive government machinery which is helping developers, which is helping other players. So therefore, it is very easy, relatively easy to set up projects in Rajasthan, and it is relatively cost-wise also lower to set up in Rajasthan. And once you have very large solar projects coming up, possibly every company is already there, many more are coming. So the target is 65,000 megawatt by 2030 by Rajasthan government, and I'm very confident, looking at the industry trends, that we would exceed that. And there is grid infrastructure wise also, thanks to RVPN and CTU, that large amount of green corridor which is being planned in the country, a substantial chunk is in Rajasthan. So for project development, low cost, very rapid development, Rajasthan is the key. Once you have a lot of projects, once you have that kind of capacity in utility scale, in rooftop, in Kusum scheme and many other schemes, then you have demand. And therefore, the second piece of this virtuous cycle is manufacturing. If you have local demand, then why not to set up manufacturing there only of module, of other components, and have your logistics cost lower, have your insurance cost lower, have your supply chain risk mitigated. And if you can do that, then it creates employment opportunity also, and you can feed to the existing capacity or upcoming capacity within the state. And therefore, the third component which adds to that is the demand creation. If you have lower cost of manufacturing, if you have lower cost of project development, then the cost of electricity is also lower. And there are multiple industries like data center, like blockchain mining, like Bitcoin mining. So these new future industries, so they require really very cheap source of power. So we are
entering, if we leverage Rajasthan well, we will enter into an era of abundance where we'll have cheap and green electricity available to all, and that would kind of propel the demand creation through these industries. Lot of such developers, lot of data centers would come to the state, and it will further, when you have more demand, then you further require more project development, and then you have more project development, you require more manufacturing, and in turn investment and job creation happens in the state, industry benefits, state benefit. So that's the kind of virtuous cycle we are talking about. That's the kind of virtuous cycle Advantage Rajasthan aims, which is being led by Rajasthan Solar Association and supported by Government of Rajasthan. So to discuss all the related issues, we have a very, very eminent panel. We have MD of RREC, Mr. Om Prakash Kasera ji. We have President of Rajasthan Solar Association, Mr. Sunil Bansal ji. We have Vice President of RSA, Mr. Manoj Gupta ji. We have the other Manoj Gupta ji is missing. Is coming. He's coming. He's slightly late. Perhaps he is busy selling modules, and is one of the largest manufacturers in Rajasthan of solar panel, homegrown large EPC development and IPP company, Race Power Infra. Mr. Ketan is already here. Many of you already might know him. We have Adani is very, very successful in the state, and we all know who did the magic. So the man of the moment for Adani is also with us, Mr. Jain. He is smiling. Perhaps I hope that the compliment could be befitting to the work he has done and what contribution he has made for the industry development in the state. We also have Mr. Rajneesh Gupta, and I don't know you, sir, but maybe we'll meet. And finally, we have Rajasthan Solar Association young CEO Nitin Agarwal and myself. So I'm chairman of Rajasthan Solar Association, as well as I'm a CEO of Brookfield Renewables company called Evren. So I would like to welcome this very eminent panel. We'll request if we can welcome with a big round of applause. I also welcome industry colleagues who have come from throughout the country and taking interest in the state, and our friends from media. With that, I will request Mr. Sunil Bansal ji to start the session. Thank you. थैंक यू सुमन जी. आगाज बहुत अच्छा हुआ है. सुमन जी ने स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली आज कुछ निकल के आएगा इसमें. अब मैं इनवाइट करता हूं केतन मेहता जी को. राजस्थान की एक बड़ी ईपीसी कंपनी और हमारे लिए गौरव. तो केतन जी राजस्थान के सोलर सेक्टर के बारे में कुछ एलोबरेट करेंगे. केतन जी. Thank you for the warm welcome, and it is my honor to be present here amongst these distinguished people. I welcome everyone sitting here and who has come here for this session. Before starting, my thought process on Rajasthan, I think let me just give you a perspective. So many people come to us and say कि यार राजस्थान में एक सोलर प्लांट लगाना है, राजस्थान में पावर जनरेट करनी है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो राजस्थान के पोटेंशियल और राजस्थान में इंटरेस्ट सोलर का इतना ज़्यादा है, इस बात से लगेगा कि आज अगर किसी को राजस्थान में एक बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में लगाना हो तो द अर्लीस्ट डेट व्हेन ही कैन इवैक्यूएट पावर इन राजस्थान इज़ 2030. तो 2024 में हम बैठे हैं और 2024 से लेके और 2030 तक की जितनी ग्रिड है, जितनी कनेक्टिविटी है, जितनी इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स का होता है, इंटरस्टेट ISTS, दैट इज़ ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड. तो इस लेवल का इंटरेस्ट है स्टेट में जो कि आई थिंक अनफोर्सिन, किसी भी और स्टेट में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है. और जब हम लोगों ने कंपनी शुरू की थी तो आई थिंक एक ही चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी, आई बिलोंग टू जोधपुर, आई एम बॉर्न इन जोधपुर विच इज़ द सन सिटी.
of India. And all my life, my childhood, I've been in Jodhpur and in that area. So सिर्फ दो ही चीज़ें हैं राजस्थान में, सन और सैंड. ये दो ही चीज़ें आपको दिखेगी. और एक्चुअली सोलर एनर्जी को बनाने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए. सैंड से आपका सिलिका बनता है, जिससे पॉलीसिलिकॉन बनता है. पॉलीसिलिकॉन से आपके मॉड्यूल्स बनते हैं. और सन इज़ योर रॉ मटेरियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी. तो ये सिर्फ दो के कॉम्बिनेशन से we can power the energy needs of the entire world, whether it is power, hydrogen, or any other form of energy is required. So this can be completed with this combination. And राजस्थान का एक बहुत छोटा एरिया है जिसके अंदर अगर सोलर पैनल्स के फॉर्म से मनीष जी energy का बनाए- स्वागत करते हैं. नमस्कार मंच पे आए मनीष गुप्ता जी, इंसोलेशन एनर्जी के चेयरमैन. मनीष गुप्ता जी प्लीज. AK Jain केतन जी भी- प्लीज. I welcome AK Jain ji also. I think प्लीज AK जैन साहब प्लीज. नमस्कार. मोस्ट वेलकम सर. एक्स MD रील और हमारे मेंटर AK जैन साहब प्लीज. सो आई थिंक भगवान हर एक को कुछ ना कुछ एक नेचुरल गिफ्ट देता है. जैसे सऊदी है, अबू धाबी है, वहाँ पे ऑयल है जिसकी वजह से उतना इतना डेवलपमेंट हुआ है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज सिर्फ ऑयल के भरोसे. कई कंट्रीज़ हैं जहाँ माइंस होती हैं. ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे माइनिंग जो है डिपॉजिट्स इतने हैवी हैं कि दैट कंट्री इज़ बिकम डेवलप्ड. तो वैसे ही जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, दिस सन एंड सैंड कॉम्बिनेशन, this can become a reason why we can become a developed state, a developed country, if harnessed properly. और आई वुड से कि ये 60 गीगावाट या जितना आज राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 15 गीगावाट, 10 गीगावाट, दिस इज़ ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट. बिकॉज जो एनर्जी की नीड है दैट इज़ मच बियॉन्ड पावर. पावर इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. पावर की रिक्वायरमेंट डेली जो हम एनर्जी यूसेज करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स है, ये है, वो सबके लिए है. इससे जो 10 टाइम्स इसका यूसेज आने वाला है वो मटेरियल्स में. जब हाइड्रोजन इकोनॉमी, कार्बन कैप्चर एंड ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में जो मटेरियल, जितना ऑयल से जितना मटेरियल बन सकता है, हाइड्रोकार्बन से जितना मटेरियल बन सकता है, जितना हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जितना मेडिसिन यूज़ करते हैं, जितने फर्नीचर, जितना भी मटेरियल आप यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन्स है. जितना पेंट लगा हुआ है इस रूम में वो भी हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर. सो जब ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन कैप्चर, ये दो चीज़ों से जब आप ग्रीन हाइड्रोकार्बन बनाएंगे एंड यू कैन रिप्लेस एवरी सिंगल मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल विथ these मटेरियल प्रोड्यूस्ड विथ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर इसको ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उस तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं. That will be the real use and real application of this energy and this resource. So इतनी बड़ी एप्लीकेशन को देखते हुए आई थिंक इस रूम में जितने कंपनीज या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और या शायद इस पूरे एक्सपो में जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब भी लग जाएंगे तब भी कम पड़ेगा. दैट इज़ द काइंड ऑफ, so we are talking about replacing the largest source of energy in this world, which is oil. उसको replace करना in next 20, 25, 30 years is not going to be easy. And everybody, has to work together. Everybody has to come together and work towards it. And I think being in a stable country, politically stable policies, जो हमारा इकोसिस्टम है वो इतना स्टेबल है, राजस्थान की जो खुद की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बहुत स्टेबल है, तो राजस्थान हैज़ एन यूनिक अपॉर्चुनिटी एंड यूनिक पोजिशनिंग इन दिस एंटायर इकोसिस्टम टू लीड दिस चार्ज and become an inspiration for everybody to follow. So that is it. I think that is my thought. Thank you. थैंक यू केतन जी. केतन जी ने एक नया शब्द दे दिया. आज अभी तक तो हम सन और लैंड ही बोलते थे, इन्होंने सैंड और बोल दिया, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग की बात होने लगी है. तो ये जो सैंड है, सिलिका सैंड है, वही हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल है सोलर मॉड्यूल का. तो सन, सैंड एंड लैंड, ये हमारा पंच लाइन ही है. ये तीनों अवेलेबल है राजस्थान में. तो डेफिनेटली हमारे लिए आने वाला फ्यूचर राजस्थान का केवल जनरेशन का ही नहीं है, प्रोडक्ट का भी है बहुत बड़ा.
हम लोग गवर्नमेंट को ये बात बार बार कहते हैं कि अब टाइम आ गया कि राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, रियल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए और सरकार हमारी बात को अच्छी तरह से समझ भी रही है। इसी कड़ी में मैं सारे लोग हमारे एमडी साहब को सुनना चाहते हैं। ओम कसेरा जी को, आईएएस ऑफिसर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओम कसेरा जी से कि वो राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, कैसे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बोलें। कसेरा साहब। मंच पर उपस्थित सुमन जी, सुनील जी, जैन साहब, मनोज गुप्ता जी, मनीष जी, केतन जी, जैन साहब, नितिन जी, सभी सम्मानित महानुभाव और हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, उस वजह से 10-15 मिनट का देरी हो गया, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं उस चीज़ के लिए। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने तैयार किया है जिसमें जो राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो जो संभावनाएं हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। देखिए, इस हॉल में मौजूद सभी लोग किसी न किसी रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर नाम आता है तो सबसे पहले सौर ऊर्जा का नाम आता है, क्योंकि जो सन है वो इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है और जब तक सन है तब तक हम हैं। जिस दिन सन निकलना बंद हो जाएगा हम भी निकलना बंद हो जाएंगे। तो easiest mode of energy available to mankind and abundant, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी सब चीज़ों की लिमिटेशन है जो आरी के दूसरे पार्ट हैं। और सबसे अच्छी बात रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई है। जितने भी आवर ये अवेलेबल रहता है तब तक ये रिलायबल सोर्स है कि आएगा ही आएगा। जैसे विंड है तो उसका कोई रिलायबल नहीं है, उससे आप ग्रिड प्लानिंग नहीं कर सकते। वो सुबह भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, और जब आएगा तो एक साथ कोई गस्ट आ गया तो बहुत सारा जनरेट कर देगा, नहीं तो उससे आपका ग्रिड प्लानिंग आप नहीं कर सकते हो। सोलर से आप ग्रिड प्लानिंग कर सकते हो। और सोलर के साथ जो एक चैलेंज है वो यही है कि ये ऑफ सोलर आवर्स के अंदर अवेलेबल नहीं रहता है। तो उसके लिए बहुत सारी अभी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इनिशियल फेज में है। मैं समझता हूं कि जो हम 2005 में जो सोलर का पीरियड था, इनिशियल बेबी पीरियड तो जो था, वो आज सोलर के साथ जो अन्य एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चाहे वो पंप स्टोरेज के फॉर्म में हो या बैटरी स्टोरेज के फॉर्म में हो या हाइब्रिड विंड के साथ हाइब्रिड करके रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के फॉर्म में हो, तो आगे आने वाले 5 से 10 सालों में जैसे अब सोलर का एक बेस कॉस्ट आ गया है कि 2 रुपये 2.5 रुपये के बीच में आपको सोलर अवेलेबल है, उससे नीचे जाना अभी काफ़ी समय से उसी रेंज में चल रहा है और आगे भी आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि कोई 2 रुपये से 50 पैसे में हो जाएगा या 1 रुपये में हो जाएगा। मोटा मोटी यही कॉस्ट रहने वाला है। थोड़ा बहुत हो सकता है और चीप हो जाए, जैसे सोलर साइज़ बढ़ रहे हैं, पैनल साइज, लैंड की रिक्वायरमेंट अब कम हो रही है। पहले एक ज़माने में 150-200 वॉट के पैनल्स आते थे, वो अभी 500-600 के आने लग गए। कुछ टाइम में 700-800 के पैनल आने लग जाएंगे। तो जो लैंड रिक्वायरमेंट थी वो कभी 2 हेक्टेयर पर मेगावाट होती थी, वो अभी घट के 1.25 से लेके 1.5 तो हो गई है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले साल में अराउंड 1 हेक्टेयर पर मेगावाट आपकी लैंड रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो वही चीज़ अभी जो बैटरी स्टोरेज की कॉस्ट है, वो जो अभी 7 रुपये 8 रुपये आ रही है, वही आने वाले टाइम में विद द इंक्रीज इन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ बैटरी स्टोरेज और
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पम्प स्टोरेज, क्योंकि इफेक्टिवली कहीं पे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। हम लोग कंसेप्चुअल तौर पे ही पम्प स्टोरेज या बैटरी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही एक बार एक साथ चीज़ें होने लगेंगी और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो थर्मल का एवरेज जो कॉस्ट आता है आज, थर्मल के साथ चैलेंज ये है कि करीबन कॉस्ट उसकी 4.5-5 रुपये पर मेगावाट पर यूनिट पड़ती है और लंबा जेस्टेशन पीरियड है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लंबा जेस्टेशन पीरियड और कॉस्ट भी उसकी 4.5-5 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। तो सोलर कपल्ड विद बैटरी स्टोरेज आगे आने वाले समय में 5 साल बाद में मैं समझता हूँ 2030 के आसपास उससे कम कॉस्ट में पड़ेगा, और जैसे ही वो उससे कम कॉस्ट में आएगा और क्योंकि थर्मल में फिर लगातार उसके बाद भी आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है जो इस केस के अंदर आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो एक बार वो चीज़ हो गई तो आप देखेंगे कि देन इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेस द traditional source of energy, and then we'll have truly renewable sources। और उसके बाद चीज़ें काफ़ी जो आप गवर्नमेंट का या वर्ल्ड ओवर एक फोकस रहता है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी हम यूज़ करें, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती ही जाएगी। आज एवरेज यूज़ ऑफ जैसे जैसे हिस्टोरिकल डेटा है कि जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में जाता है वैसे वैसे वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। एंड विद द न्यू प्रोडक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले कोई इलेक्ट्रिक कार के बारे में नहीं जानता था, और आज नॉर्वे जैसे कंट्री में तो लगभग 80-90% 100% कारें ही उन्होंने लगभग इलेक्ट्रिक कर लिया। अपने देश में भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट जो 25-30 लाख रुपये होती थी अब 8-10 लाख रुपये में भी इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है। तो वो और भी कम होगी, और लोग जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे वैसे वैसे और इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें होंगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो हमें एनर्जी के सोर्सेज ऐसे लाने पड़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली फ्यूल जो है थर्मल प्लांट्स में कोयला, उसकी भी अपनी एक लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कभी न कभी तो वो भी ख़त्म होगा। तो सोलर इज़ द सॉल्यूशन कि सन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और सन ख़त्म हो गया तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके ऊपर बेस्ड एनर्जी ही हमको अल्टीमेटली शिफ्ट होना पड़ेगा, और वो पीरियड ट्रांजिशन का भी है। स्टोरेज 5 साल बाद में पर यूनिट कॉस्ट कपल्ड विथ सोलर विल बी लेसर देन द थर्मल यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड देन इट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल रिप्लेस द एंटायर सेक्टर। टॉकिंग अबाउट राजस्थान, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादातर लोग ये बात को जानते हैं कि राजस्थान इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी एक तरह से सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट के अंदर हॉटस्पॉट है। और ये एक सोलर इंसोलेशन का मैप आपके सामने है। तो जो डार्क ऑरेंज वाला पार्ट है दैट इज़ द हाईएस्ट जहाँ पे रेडिएशन रहता है। उसके बाद में जो ऑरेंज पार्ट है वहाँ पे भी डिसेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रहता है, और ये राजस्थान के तकरीबन आप देख रहे होंगे 60% क्षेत्र को कवर कर रहा है। एंड रेस्ट 40% जो येलो पार्ट है राजस्थान के कंटेक्स्ट में वो आपको हो सकता है कम वहाँ पे दिख रहा हो सोलर रेडिएशन, पर आप इसको कंपेयर करेंगे विद विज अदर एनी स्टेट ऑफ इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कंपेरेबल आपको मतलब स्टिल देयर इज़ फाइनेंशियली वाइबल सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। और वो हमने अभी सिद्ध किया है जब हमने कुसुम स्कीम जो गवर्नमेंट की थी उसको राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल के ऊपर। तो उसमें हमारे प्लांट सब जगह बिके हैं, और येलो पार्ट में, ऑरेंज पार्ट में, डार्क ऑरेंज पार्ट में तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। दूसरा जो विंड मैप भी आप देख रहे हैं वो भी राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो ये ग्रीन पोर्शंस आपके हैं, और सदर्न पार्ट में जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला पार्ट है उधर कुछ विंड के भी अपने सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एरियाज हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये एक रेयर टाइप का सा कॉम्बिनेशन है कि
इसको दोनों मैप्स को अगर अपन मिला देते हैं तो हाइब्रिड पार्क्स के लिए या हाइब्रिड एनर्जी के लिए भी, सोलर प्लस विंड के एनर्जी के लिए भी राजस्थान एक सूटेबल डेस्टिनेशन इमर्ज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके साथ एक और एडवांटेज है, जो ट्रेडिशनली थार डेजर्ट का पार्ट रहा है, जो एरिया ऑरेंज है या डार्क ऑरेंज पार्ट है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए लैंड वहाँ पे आपको अवेलेबल है, चीपर रेट्स पे अवेलेबल है। और गवर्नमेंट लैंड भी काफ़ी सारी है। और रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने, जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद में काफ़ी सारे, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे भी जो हॉल में मौजूद हो, उनकी कंपनीज़ को भी गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंट ट्रांस है उसके अंदर लैंड अलॉट की है। तो ऑलमोस्ट 10,000 हेक्टेयर के आसपास अभी रिसेंटली पिछली 1-2 कैबिनेट मीटिंग में लैंड अलॉट हुई है। एंड फ्यूचर में भी एक कंटिन्यूस ये रहेगा। और एक स्टैंडर्ड लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पे अभी अंडर कंसिडरेशन है, एंड वेरी सून विल कम आउट विद दैट पॉलिसी। वाटर की बात करें तो जो वेस्टर्न पार्ट और राजस्थान पे है, वहाँ पे आईजीएनपी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे मोस्टली पानी जो है जितना चाहिए होता है किसी भी सोलर प्रोजेक्ट के लिए, वो अवेलेबल है। पावर इवैक्यूएशन नेटवर्क की कुछ लिमिटेशंस हैं अभी, पर वी आर वर्किंग ऑन इट। और अभी हमने पावर ग्रिड के साथ में जो आरवीपीएन है राजस्थान गवर्नमेंट की एजेंसी, उसने एमओयू किया है, एंड दे विल इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी टुगेदर। एंड आने वाले टाइम में तकरीबन 125 गीगावाट का ट्रांसमिशन नेटवर्क विल डेवलप इन राजस्थान इन नेक्स्ट 5 years or so. Next, please. So this is the background, and now what Rajasthan has done till now, that we'll talk about that. So we have around 30 gigawatt capacity installed as we are talking on the day. Recently we were awarded the first rank in solar installed capacity in India by the Honorable Prime Minister in the Ahmedabad and we were second in overall renewable energy, but they calculated it till July only. If they would have calculated it the data of August, we commissioned some new projects in August. Then in RE overall, we were again number 1 in entire India. So the third point is we are number 1 in Kusum projects. When I talk about Kusum projects, the original scheme was mainly focusing on the distributed model of the solar projects. But some states like Maharashtra and MP, they have done good work in Kusum scheme also, but they have preferred the cluster model. We have preferred the distributed model, where each plant is distributed to a small developer, so that in the last 6 months or so, we have awarded almost 4,500 megawatt in Kusum projects, around 1500 to 2,000 developers, the budding entrepreneurs, and some of them are farmers also, some of them are the small entrepreneurs, and some of them are big companies also. But we have gone for the distributed model, and no state other than the Rajasthan has done that. Some states which have matched our quantum, they have preferred the cluster model, but when you talk about the distributed model, we are the number 1. And Rajasthan solar capacity, when you take 2016, it has increased 1200% when you compare that. And by 2030, we are targeting almost 120 gigawatt. All this coupled with the cheaper land and the available solar radiation, we are naturally our solar tariff is the lowest, not only in India but probably in the world. Next.
So this is just a gist what I have talked about. We have total 29 gigawatt, almost 30 gigawatt RE installed, out of which 25 gigawatt, 25 gigawatt is the solar, and almost equivalent capacities under implementation, various stages of implementation, and that we expect in coming next 2 to 3 years, this 32 gigawatt more will be added to our already 30 gigawatt, and will further double it, and by 2031 we are targeting almost 120 gigawatt RE in the state of Rajasthan. Next. So these are the details of ongoing projects. Various companies, including the central PSUs, are implementing these projects. Next. So this is the RE targets and rankings. I already talked 120 gigawatt in 2030, and solar Rajasthan number 1, wind in Rajasthan is number 5. Overall, as on date, we are number 1. Next, please. So these are the new initiatives that we are focusing upon. New storage policy, including pump storage plant. We are coming out with the new storage policy that I talked about, how the entire scenario is going to change in next 5 years. Solar coupled with the storage will be the game changer. Then we're already planning to float back. Last slide, please. Already planning to float around 2000 megawatt battery storage systems. And new land policy we are coming up with, as I already talked, and new investment promotion policy is recently approved by the state cabinet, and very soon it will be come in the public domain. And we will not only continue with the concessions that are, or the motivations, incentives that were being provided by the earlier government, will increase those incentives in the new RIPS 2024 policy. Next. And right now there are we have different policy, a policy for pump storage, a policy for green hydrogen, a policy for the solar. So we'll come up with the integrated renewable energy policy, where it will cover the entire, all of the sectors in the renewable energy. Next, please. So these, we welcome the private investment, and simultaneously we are, doing the MOUs and the joint ventures with the central PSUs. Central PSUs have as you know, they have huge cash reserves, and the obligation of the central government is also that they should focus on the renewable energy and help in reducing the overall carbon footprints of India. So these are the details of some of the MOUs and the joint venture that we have done with the central PSUs, and these will all come up in next 3 to 4 years on ground. Next, please. So these are the investment opportunities. As I talked about, we're targeting around 125 gigawatt RE capacity in Rajasthan by 2030, and ample scope is still there in terms of both in solar and wind and hybrid model of the energy. We are again floating a bid. We have already floated the bid, and we are right now in the process of addressing the pre-bid queries. 8,000 solar coupled with 4x800, 3,200 thermal power capacity, and will have that thing on ground by next 4-5 years.
Then again, wind and hydro projects we are planning, and in the last we are developing the parks. 2 parks are being developed by RSDCL, and 1 park will be developed by Utpadan Nigam. Next. So these are the details of the Kusum scheme. Kusum component A, 300 megawatt has already been installed. 300 is further under installation, will come up by March 2025. 1000 megawatt capacity we have further allotted, will float very soon. Will float the tender and will finalize hopefully before the new calendar year, and in the next 6 months or so after that, by June 2025, we expect that capacity will also be added to the grid. Kusum B is the we are all out of 2.62 lakh solar pump targeted. We have already done 84,000. Rest in progress. Kusum C, I've told you we are the only state which has done 4,500 megawatt plus on distributed model, and we have already floated a tender for 1,000 megawatt for installing rooftop solar plants on government buildings, and further doing some scheme in form of say other Suryagram Reserve, where the entire village will be based on the solar energy. Next, please. So these are the details of the other PSP projects. Next, please. These are our partners in development, both in private sector and the you can see the PSUs here, who's who of the energy sector in India. Next. So this was with reference with this is it in form of presentation. I invite you all. We are having the Invest Rajasthan or Rising Rajasthan Summit in December 2024 in Jaipur, and as a precursor to that, we are having an investor meet of energy sector, particularly renewable energy sector, on 11th of November 2024 in Jaipur RIC. So I invite you all with your investment proposals and anything I can help you with. I'll be personally available to you all. Thank you so much. थैंक यू एमडी सर। इस तरह का प्रेजेंटेशन और इस तरह की डाटा से हमारे इंडस्ट्री के लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है। राजस्थान सोलर का एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, उस चीज़ को कितना मैक्सिमम हार्नेस कर सकते हैं, आरएसए इसी प्रयास में लगा रहता है। सुबह हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी यहाँ पे हमने काफ़ी मीटिंग्स कराई। इन्वेस्टर्स को जब तक टॉप लोगों के साथ मीटिंग नहीं कर ले तब तक वो अपना मन नहीं बना पाता इन्वेस्टमेंट का। इसी कड़ी में हम लोग और इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और हमारी पूरी टीम इसके अंदर लगी रहती है। अब मैं टाइम थोड़ा कम बचा है, Q&A भी करना ज़रूरी है, लोगों की क्वेरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं सबसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा टाइम लें और अपनी बात शॉर्ट शब्दों में रखें। हम इसको कंप्लीट करते हैं Q&A के टाइम के लिए। 2 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि AU बैंक से राजेश गुप्ता जी अपनी स्कीम्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड में बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने और एक नया बूस्ट दिया है, तो राजेश गुप्ता जी 2 मिनट में अपनी बात रख दें प्लीज़। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। और मैं एमडी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार और जिस तरह का इकोसिस्टम राजस्थान में तैयार किया गया है, सभी फाइनेंसर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया है कि इस बिज़नेस को
अच्छी से अच्छी तरीके से किया जा सके और बहुत ही फेयर तरीके से इस बिज़नेस को किया जा सके। जो एस्क्रो अरेंजमेंट का जो मॉड्यूल है जो राजस्थान में अवेलेबल है, वो बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी अवेलेबल नहीं है। और हम जब भी कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट एमडी साहब को या उनके ऑफिस को करते हैं तो उसको बड़े पॉजिटिव मैनर में देखा जाता है और बहुत ही जल्दी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी रिटेल के कस्टमर हैं, जो भी आरपीजी हैं, उसके लिए हमने बहुत ही सिंपल स्कीम रखी हुई है कि वो 20% अपना कंट्रीब्यूशन लाएं और 80% फाइनेंस एयू बैंक करने के लिए तैयार है। और ये एक तरीके का ओटीसी प्रोडक्ट है। ओटीसी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि किसी को बुखार है, सिंपल बुखार है, तो वो डॉक्टर के पास जाने की जगह मेडिकल की दुकान पर जाए और बोले मेरे को पैरासीटामोल चाहिए, तो जो 300 रुपये 500 रुपये डॉक्टर को दिखाने का चार्ज है, उसकी जगह 10 रुपये की गोली से उसका इलाज हो सकता है। तो इसी तरीके से कोई रिटेल इन्वेस्टर जो इस तरह का बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है राजस्थान के अंदर, और अगर उसके पास 20% मार्जिन अवेलेबल है तो उसको, और उसका सिविल अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा एयू बैंक को अप्रोच करे और अपना सैंक्शन लेटर 5 दिन के अंदर ले सकता है। तो बहुत ही सिंपल स्कीम है और बहुत ही फास्ट तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, आपने बड़ी क्रिस्प वे में अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात तो पैसा मिलने की होती है ना। प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, पैसा कैसे मिलेगा, एक आपने 2 बातों में कह दी, उसी बात को हम घुमाते रहते चाहिए घंटे। बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इसी कड़ी में आगे हमारे आर.के. जैन साहब हैं, अडानी ग्रुप के स्टेट हेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बात रखें, कैसे राजस्थान में इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। Thank you, Bansal Saab. First of all, I welcome MD Saab, Kasera Saab, A.K. Jain Saab, सुमन जी, चेतन जी, एयू बैंक के गुप्ता साहब, मनोज गुप्ता जी, then Manish Gupta ji and CEO Nitin Gupta ji. Thank you all for coming over here and inviting us also to speak something. बेसिकली जिस तरह का अभी गुप्ता जी ने भी बताया कि इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, दैट इज़ रिमार्केबल एंड आई हैव विटनेस दिस डेवलपमेंट राइट फ्रॉम almost scratch in 2014-2015 when we started some solar journey which has reached to now at this stage and is still long way to go. So this is all because of very aggressive policies by government of Rajasthan, development of a conducive atmosphere for industry and to develop the park as well as project in state. Because of this blessing of God, Rajasthan state is uniquely positioned to have this abundance of this solar power, wind power, etc. Now, as far as our journey is concerned, just I want to share. In 2015, we started with a park only, 500 megawatt. Now we are in implementing stage of implementation of almost 10,000 megawatt, which is already commissioned more than 2,000 megawatt. And the projects, whatever now we are almost have commissioned more than 5,000 in state and around 10,000 in pipeline. And we have a very ambitious plans to implement more and more plants here, almost 30 gigawatt to 50 gigawatt more. And once this hydrogen plant will also be coming over here, green hydrogen, that will also be huge capacity development in state, which is another potential area which will change the scenario totally in the state. Whatever we are having right now, maybe 10% or 20% of that. So if I talk myself, our group, this is almost, we are planning for 1.5 million ton hydrogen plant coupled with 50,000 around
green solar power. So all in all, this is just a sample of telling me the more we are moving in the area, the more potential we are exploring day by day, day by day. And it is heartening to note that everybody and more people have added to this journey, and now almost more than 200 agencies are working in Rajasthan state for development of mediocre and big size power station, solar power station. So I wish all the best to everybody and congratulate the mainly to RREC, who has played a role of catalyst in developing such a good atmosphere and all that. Thank you very much. थैंक यू जैन साहब। राजस्थान में RRECL अगर किसी भी स्टेट की दूसरी एजेंसी से कंपेयर करेंगे तो नंबर 1 पाओगे आप। जो फैसिलिटेशन RRECL की तरफ से मिलेगा, कई स्टेट्स में तो इफेक्टिव ही नहीं है नोडल एजेंसीज। अब गुजरात का ही ले लो, गेडा उतना इफेक्टेड नहीं है जितना RRECL इफेक्टिव है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस तरह की बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे नोडल एजेंसी का रोल ही नहीं रहा। राजस्थान में RRECL बहुत पिवटल रोल प्ले करता है। आपकी कोई भी काम हो सोलर के अंदर, आपके आगे रहता है, आपको सपोर्ट करता है। अब इसी कड़ी में टाइम हमारे पास थोड़ा कम बचा है, हम बीच में कुछ क्वेश्चन भी अगर किसी के इम्पोर्टेंट होते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। और मैं मनीष गुप्ता जी को इनवाइट करना चाहूँगा, जो हमारा एक हॉट टारगेट है आज की तारीख में, मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में कैसे आए, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट का एक नया वेव लेके आ सकते हैं राजस्थान के अंदर। हमारा मिनिस्टर साहब से भी बड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ है इस मुद्दे पे। और मनीष जी से मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि टाइम थोड़ा कम लें, क्योंकि अभी हमें Q&A करना है। मनीष जी के पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें सुनने की इच्छा भी होती है, बाकी आज थोड़ा टाइम कम लें, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी मनीष जी से। तो मनीष गुप्ता जी, चेयरमैन इंसोलेशन एनर्जी, जो राजस्थान में 2 प्लांट उनके ऑलरेडी हैं, तीसरा प्लांट एक और लेके आ रहे हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग की उनकी प्लानिंग है। मनीष जी और थोड़ा डिटेल में अपने बारे में और बताएंगे राजस्थान के एनवायरनमेंट के बारे में। एक मिनट, मनीष जी बोले उससे पहले 1 मिनट बोलूँगा। ये मेरे प्रेजेंटेशन में छूट गया था ये पार्ट कि अभी मैंने जितनी भी बात की वो सब डेवलपमेंट या सोलर डेवलपर के हिसाब से बात की। तो केतन जी को आप देख सकते हैं, अब 30s में है, मतलब 40 की में पहुँचे नहीं है, और वो इज़ ऑलरेडी, उनकी नेटवर्थ आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं कितनी है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। और दूसरा जीता जाता एग्जाम्पल राइट हैंड साइड में बैठा है मनीष जी, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले ही फैक्ट्री स्टार्ट की थी। और कितने रुपए में मनीष जी शेयर किया था आप? कितने रुपए में IPO आया था आपका? है 38 रुपीज़ में आपने शेयर किया था, और अभी कितना शेयर चल रहा है आपका? लगभग सर 35। 38। अभी इन्होंने बिजनेस से कमाया है नहीं कमाया पता नहीं, पर उन्होंने शेयर बेच के इतना पैसा कमा लिया है कि अब ये वैसे 10 फैक्ट्री और प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप राजस्थान में इन्वेस्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट मनीष गुप्ता जी बन सकते हैं। विद दोज वर्ड्स आई इनवाइट मनीष गुप्ता जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर आपके इन शब्दों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, और बंसल जी का और RSE की टीम का, जिन्होंने आज राजस्थान के लिए स्पेशली प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज कराया। REI एक बहुत बड़ा मंच है हम सोलर इंडस्ट्री वालों के लिए, जहाँ पर देश ही नहीं पूरे विदेश के भी लोग इस कार्यक्रम को और इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए आते हैं। एज ए कंपनी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 2017 में इंसुलेशन एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग की विषम परिस्थितियों में शुरुआत करी थी, जब मैन्युफैक्चरिंग का राजस्थान के अंदर इतना माहौल नहीं था या इंडस्ट्री नहीं थी। और बहुत सारे लोगों ने हमें भी शुरुआत के टाइम पे डराया था कि इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं लेकिन यहाँ इंडस्ट्री पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन हमें दृढ़ विश्वास था अपने ऊपर भी और राजस्थान सरकार की पॉलिसी पे भी कि हम डेफिनेटली अगर इंडस्ट्री यहाँ लगाते हैं तो राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की जो अपनी सोलर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। और इस तरीके से 50 मेगावाट से हमारी एक छोटी सी यूनिट जो सन 2017 में शुरू हुई थी, आज हम 2 यूनिट्स के साथ 1000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 3000 मेगावाट की एक और यूनिट नई लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली सोलर के इस पूरे की पूरी जो जर्नी इस समय चल रही है, इसमें इंस्टॉलेशन या सोलर पावर जनरेशन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा मैटर है।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में नहीं लेके आएंगे, जब तक इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पॉलीसिलिकॉन से लेकर सोलर पैनल तक, पॉलीसिलिकॉन, इनगोट, वेफर, सेल और उसके बाद सोलर पैनल और उससे जुड़ी हुई एंसिलरीज को अपने देश में नहीं लेके आएंगे, जब तक हम सोलर की इस जो अभी सोलर की जो अभी रैली चल रही है, सोलर की जो डिमांड है इंडिया की, उसको हम पूरी तरीके से पूरा नहीं कर सकते। और इसी कड़ी में जो अपने देश का 2030 तक का 500 गीगावाट का लक्ष्य है, जिसमें कि 293 गीगावाट सोलर से है, सरकार ने भी पूरी तरीके से कमर कसी हुई है कि इस जो आने वाले जो इंस्टॉलेशंस हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही करी जाए। और इसीलिए भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी पूरी तरीके से सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पेशली सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेस्ट पॉसिबल पॉलिसीज़ हो सकती हैं, जो इंसेंटिव्स हो सकते हैं, जो हर स्टेट अपने हिसाब से उन इंसेंटिव्स को प्रपोज कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, अगर आप हॉल्स में जाएंगे, एक टाइम था जब अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मेगावाट में कैपेसिटी लिखा होती थी। अगर आप इस समय किसी की भी स्टॉल पे जाते हैं, आपको गीगावाट से कम की कैपेसिटी नहीं मिलेगी। 5 गीगावाट, 6 गीगावाट, 10 गीगावाट एक कॉमन चीज़ हो गया। और ये डेफिनेटली ये हमारी एक रियल कह सकते हैं जीत रहेगी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की और इस सोलर पूरे की पूरे रैली की, कि हम जो भी सोलर पावर प्लांट लगाएं वो अपने देश के बने हुए सोलर पैनल से, अपने देश के बने हुए सोलर सेल से हों। हम इससे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी जनरेट कर पाएंगे। सरकार ने खुद कहा है कि इसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा और इस इन्वेस्टमेंट से हमारे देश में इकोसिस्टम बनेगा, हजारों लाखों की संख्या में रोजगार होंगे और जिससे कि जो जिस जगह पर फैक्ट्री लगेगी वहाँ के लोकल लोगों को और पूरे प्रदेश को और पूरे देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी भी ऐसी आशा है कि राजस्थान सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी से अच्छी स्कीम लेके आएगी। अभी हमारे राजस्थान में लगभग मैन्युफैक्चरिंग 6 से 7 गीगावाट के आसपास की है, तो मेरे को उम्मीद है कि अगले 2 साल के अंदर हम इस मैन्युफैक्चरिंग को 20 से 30 गीगावाट तक लेके जाएंगे। और ये राजस्थान सरकार से हमारी छोटी सी उम्मीद भी है और आशा भी है कि इस मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई ना कोई एक बेहतरीन स्कीम लेके आएँ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी। आप देख लें राजस्थान की गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है। हमारे एमडी सर एक प्रोफेशनल की तरह इंटरवीन करके किसी कंपनी के डाटा को बताते हैं। ऐसे ही सब आज सुबह हम मंत्री जी के साथ बैठे थे तो वो भी इसी तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो अब टाइम आ गया है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने का, बिग वे में इन्वेस्टमेंट करने का। सोलर सेक्टर में हर विंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड में, रूफटॉप में, ग्रिड स्केल में, हर तरह से बड़ा एवेन्यूज़ हैं। हमें उम्मीद है राजस्थान में बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी अब इन्वेस्टमेंट के लिए। केवल ग्रिड स्केल का इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र नहीं होगा राजस्थान में, सीटीयू ही एकमात्र नहीं होगा, हम और भी कुछ लेके आएंगे, यही हमें उम्मीद है। अब मैं ऑडियंस से इनवाइट करता हूं, अगर कुछ क्वेश्चन हो, 1-2 तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्पीकर को बोलूँगा। माइक दीजिएगा। Hello. Yeah, sir. President sir, I'm a square peg in round hole. I'm a doctor, gynecologist from Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur. थोड़ा सा पास माइक। I'm a doctor, gynecologist, robotic surgeon in Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur. My son is in energy sector in Guwahati. So he is doing some EPC work. So I want to get him here to do some more work in Rajasthan. So I'm a bit confused. Mehta ji told that till 2030 there is no scope in this thing, and what was that? I could not understand. No. So what I told was for large scale projects, which is Okay. interstate connected projects. But as sir already gave in the presentation, Kusum scheme hai, rooftop. There is a 1 gigawatt, 1.5 gigawatt tender, which is live. Distributed energy में there is tremendous scope, and rooftop तो is
infinite because every house, every government building, everything will be solarized. So when I was saying 2030, it was for large scale projects, which is on the ISTS grid, which is interstate transmission. What about, sir, agro-voltaic, I think? Sorry? Agri plus solar. एग्रो फोटोवोल्टिक ना? हाँ, agro-photo. सुमन जी बताएंगे एग्रो फोटोवोल्टिक्स के बारे में. So, photovoltaic industry knows that we have two problems. One is energy security, but at the same time, food security is also important. Rajasthan, now it has started raining, so it is not going to be arid in long run. So, do we just sacrifice our cultivable land for the sake of solar and compromise on food security? So, we have to find a balance. So, industry under the aegis of National Solar Energy Federation of India, also supported by Rajasthan Solar Association. So we have set up something called International Agri Alliance. So there the idea is we will increase the structure height and the panel would be installed in a way that cultivation can also go on, and the water which is used for cleaning of the panels could be used for irrigation. So it is going to be non-consumptive use of water. And since the entire periphery, solar is very capex heavy, so the entire periphery is going to be, the boundary wall will be there. So it's a safe, secluded area which could be used for high value generation crops, so that farmers' income can go up. So NSFAI has done a couple of pilot projects. One pilot project is being planned in Rajasthan as well. We believe it will come in a very, very big way. And I take this opportunity to highlight it to Kasira Saab. And maybe one day, sir, I would ask my team to come and make a presentation to you. And maybe part of it could also be built in the new solar policy which is coming in, or new clean energy policy which is coming in Rajasthan. Thank you. Sir, Thank you. just one Thank you, more. जी. Thank you. Yeah. Please. Thank you. हाँ, short. ओम सूर्याय नमः। सर शानदार पैनल है आज। मेरा सवाल सुमन जी से भी है और साथ ही साथ में कसेरा साहब से भी है। पहला तो ये कि एवरॉन आंध्र प्रदेश में काफ़ी हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो जो इन्वेस्टमेंट आप आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ में राजस्थान से बेहतर क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो एक बार अगर आप बताएंगे तो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट को भी इस बारे में इनिशिएटिव लेने का काम शुरू करें। और दूसरा, कसेरा साहब से मेरा निवेदन है कि कल एक ग्रुप डिस्कशन में जानकारी में आई कि एमपी के अंदर 1 रुपये में लैंड दी जा रही है, और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करी जा रही है तो 4 रुपये 35 पैसे में इलेक्ट्रिसिटी 5 साल के लिए दी जा रही है। और भी बहुत सारे इंसेंटिव जो है लैंड और उसके बारे में दिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, और SGST में 50% तक का रिबेट दिया जा रहा है। तो इस तरह के इनिशिएटिव अगर आएंगे तो आज एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और हम चाहते हैं कि राजस्थान अग्रणी रहा है और आगे भी रहे, तो सरकार का इस पर ध्यान जाए। धन्यवाद। सो राजेश्वर जी ने सवाल किया कि मेरी कंपनी में हमने इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अभी आंध्रा में अनाउंस की, और आंध्रा में ऐसा क्या है जो हम वहाँ कर रहे हैं और राजस्थान में हम क्या सीख सकते हैं। सो सबसे पहली बात कि इस तरह का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। आंध्रा एक ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन बहुत लार्ज है, वहाँ पे वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि आपको पोर्ट की बर्थ चाहिए, दैट इज़ द ओनली स्टेट विच कैन गिव यू रेडिली। राजस्थान एक लैंड लॉक स्टेट है, तो आंध्रा की अलग स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, हमारे राजस्थान की अलग स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है। हमारे पास राजस्थान में बहुत लैंड है, और इस तरह के प्रोजेक्ट जैसे अगर हम सोलर प्लस न्यूक्लियर का कॉम्बिनेशन लेके आना चाहें, फ्यूचर में सोलर प्लस बैटरी का कॉम्बिनेशन लेके आना चाहें, और जबकि अभी बैटरी का साइबर सिक्योरिटी की वजह से कंसर्न्स हैं, तो हमें ऐसे जगह पे लगानी पड़ेगी जहाँ पे कि विच आर एरियाज़ विच आर लेस पॉपुलेटेड, आसपास गांव नहीं हो, जैसे जहाँ से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लार्जर थ्रेट नहीं पहुँचे, वो राजस्थान में है। सो हमारी अपनी अलग एडवांटेजेस है, तो हमें अपनी एडवांटेजेस पे बिल्ड करना है, और आंध्रा को उनकी अपनी एडवांटेजेस पे, उनकी अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्ड करना है। एंड दैट वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांटेज राजस्थान। आई रिमाइंड यू बैक टू दैट। नाउ कमिंग टू माई पर्टिकुलर कंपनी, and we are already investing in a big way in Rajasthan. The only thing we haven't packaged it together and we haven't announced it. We are very media side company. Already, I will request my media,
colleagues not to be quoted. We already have a plan for 25,000 crore worth of investment in Rajasthan. I'm working with the Industry Secretary Saab and Alok ji, and during Reinvest I had a meeting with Honorable CM also, and the target timeline December is very tight for us because we need to announce anything. We need internal investment committee, which is multiple layer. It goes to our board in US. So if possible, we would like to announce during that. Otherwise, during any subsequent opportunity. We are already investing it. The only thing is that we are not flaunting it. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। आपने बोला कि वहाँ पे 1 रुपये में ज़मीन मिल रही है और 4 रुपये कुछ पैसे में बिजली मिल रही है, और साथ में बोला आपने 50% SGST दे रहे हैं। तो आपको पूरे पैकेज को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उसके 2 प्रोविज़न उठा लिए और वो उसमें अपन बोल रहे हैं कि वहाँ पे ज़मीन सस्ती मिल रही है। अभी आप राजस्थान की पॉलिसी देखेंगे तो उसमें 100% या 125% तक SGST मिलता है या कैपिटल सब्सिडी मिलती है। तो ओवरऑल पैकेज की जब आप कंपेयर करोगे तो राजस्थान इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव वन। सेकेंडली फिर सारी चीज़ें आप देखोगे कि लैंड इज़ नॉट दी कितना आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे तो लैंड इज़ बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा लैंड। पर अगर आप MP में लगाते हैं जहाँ पे कंजम्पशन ही नहीं है, वहाँ से फिर अपना पैनल मैन्युफैक्चर करके और जहाँ पे राजस्थान में लग रहा है वहाँ पे लेके आते हैं, तो आपकी लैंडेड कॉस्ट है उसकी जो आपके प्रोडक्ट की वो ज़्यादा पड़ेगी और आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल पैकेज आपको देखना पड़ेगा, और जब आप वो पैकेज देखेंगे तो डेफिनेटली राजस्थान इज़ फार बेटर देन MP और एनी अदर स्टेट इन इंडिया। थैंक यू। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में लेते हैं, एक स्पीकर को बुला लेता हूं मैं अभी। अब मैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनोज गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं, 2 मिनट में अपनी बात रख लें, क्योंकि Q&A में ज्यादा मजा आता है ना लोगों से इंटरेक्ट करने में, तो हम ज्यादा टाइम वहां लगाएंगे। तो मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मनोज जी। सर 2 मिनट में तो मैं खाली सबको है ना इनवाइट थैंक यू बोल सकता हूँ आपकी स्टेज पर आए देखो वैसे तो ऑल एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड बाय ऑल द पीपल्स, बट देयर आर सम एरियाज व्हिच नीड more interaction or more deliberation. What Rajasthan Solar Association has done so far for Rajasthan policy making, policy advocacy, and the benefit of the customers as well as the investors in the Rajasthan. So, Kasera Sahab, आपकी presentation में you missed one thing. Rajasthan में land tax also waived from February 2024. There is no land tax. One. Second. Rajasthan Solar Association was fighting with the Rajasthan Regulatory Commission since long time, and there was initially 500 kilowatt only rooftop was available. That was only Rajasthan Solar Association's initiative, which converted into 1 megawatt allowed with net metering policy. That was the one of the Rajasthan Solar Association's achievement. After that, we were behind all this land tax since last 4-5 years. And that has come after the change of the government. In February budget, government has announced that there is no land tax in Rajasthan after that. The third important point, we fought for this open access. Initially it was 80%, and we fought with the regulatory commission. They come up with the 100% installation allowed on your captive consumption use. And in July, CM has announced in their budget reply bhashan, it will be go up to 200%. The notification is awaited. Kasera साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी इशू कराने में सभी कस्टमर्स सभी की तरफ से सहयोग करें उसको. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड सर राजस्थान के बजट भाषण में सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि जो कैप्टिव पावर है दैट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 100% टू 200%. द नोटिफिकेशन इज स्टिल अवेटेड. पवन जी बैठे, पवन जी इज अवेयर यहाँ पर. सो रिक्वेस्ट RREC टू प्लीज हेल्प दैट नोटिफिकेशन इशूएशन ऑफ दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी वर फाइटिंग फॉर द RRADF.
नहीं करेगी, RREC नहीं करेगी, नोटिफिकेशन एज डिपार्टमेंट करेगा, बट फॉलो इट. जो भी So one more major achievement did by the Rajasthan Solar Association. You all are part of that. You are witness of that. Earlier we used to pay 2 lakh rupees per megawatt as RRDF charges. There are a lot of persuasion with all the departments. Now the RRDF has been changed. It has been converted from megawatt to per hectare. It's 75,000 rupees per hectare. It's one more achievement done by the Rajasthan Solar Association in the state. So there are small initiatives we are used to do in Rajasthan Solar Association, through Rajasthan Solar Association. And one minute और बंसल अब एक मिनट और लूँगा बस. अच्छा बोल रहे हो, बोलते रहो. So बाकी all other points has been covered. I'll tell you the Rajasthan advantage of Rajasthan. Rajasthan is the 10% land of total India, and the Jaisalmer is the world's biggest districts. And the capita of Rajasthan is very less. So there are abundant opportunity you can get in terms of land. Not only land, Surya Bhagwan ki kripa hai, we have enough more than 325 days sunny days in Rajasthan. Apart from this, it's a natural extension of NCR. जो लोग suffocated हो गए हैं NCR में, everybody is moving for manufacturing in Rajasthan. Slowly. In last 1.5 years, we are seeing that module manufacturing 5 units has been opened in Rajasthan, Jaipur itself. One more, गुप्ता जी, आप सबसे पहले ये बताओ, what made you to install the manufacturing unit in Rajasthan? That will encourage many more people. See, there are a lot of incentive has been given by the government, so it makes sense to put up your manufacturing plant in the state. So if you go through the new policy, there is a customized package. You can opt whatever your request, whatever your demands, through customized package you can opt in. So that government has supported in that way. So this is the main reason everyone is coming slowly to the Rajasthan. Apart from this, when you are in the construction of that, no, Rajasthan is the maximum number 1 in cement supply in the India. So for construction you need cement. Cement comes from Rajasthan only. So Rajasthan is one more advantage for you people to come in Rajasthan. And quartz and silica sand also will go from Rajasthan only. सर तो पहले माइनिंग में रह चुके हैं, बेटर देना इस्तेमाल कीजिए ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लगा. Sir, apart from this, one or two more things I'll tell, then I'll close my thing. For construction, you required heavy equipments. In whole India, there are only 5 JCB manufacturing plant. One of them in Jaipur. Or not only in Jaipur, it is the highest assembling and JCB supplier all over the world from Jaipur. That also needed you in your construction business. After that, if you see all cable manufacturers, all conductor manufacturers, they all are sitting in Rajasthan, Bhiwadi, Jodhpur, Bikaner, everywhere. Everyone is available there. And the biggest one, जिससे आपको पैसा मिलता है, एक energy meter, जिससे आपको all your billing happened, that comes from secure meter. It's from Rajasthan again. Thank you. Thank you. There is a big list, but I need to close. बंसल जी मेरे को देखे जा रहे हैं, कब बंद होगा ये आदमी. सर एक रिक्वेस्ट भी है सर, कसेरा सर से एक रिक्वेस्ट है. हाँ सर आपने एक मेंशन किया अपने प्रेजेंटेशन में SC/ST लैंड पे उसको इजी बनाने के लिए. वो बात चल रही है अभी और कंक्लूजन तक पहुंच ही चुकी है. बस अब उसको जल्दी नेक्स्ट वीक हो सो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा. क्या बात है. थैंक यू सर. अरुण जी की एक टेंशन कम हो गई. सोच रहे थे क्या करूं. चलो जी, मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद. क्या जोशीला भाषण था मनोज जी का, क्या जोशीला बंसल जी, presentation? एक चीज और हम चाहते हैं, वो SGST वाली छूट, वो SGST वाला सर एक बेटर और हो जाए तो सर नो डाउट अपने राजस्थान की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्टअप मिलेगा सर. तो वो भी एक सर हम और आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे. मैटर अल्टीमेटली फाइनेंस डिसाइड करेगा. हाँ, हम तो आपकी साइड में ही हैं.
डेफिनेटली जब RRECL ये मन बना लेगा कि हम आपकी साइड में हैं तो इंडस्ट्री का तो भला हो ही जाना है, इस बात को हमें पूरा विश्वास है। अब मैं QN, हाँ जी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद मैं जैन साहब को इनवाइट करूंगा। माइक एक बार चालू कर दीजिए। Thank you all. My question is about what is the government initiative about the technology development in renewable energy? Like after solar, we come to hydrogen. After hydrogen, what? So how are we going to develop in battery technology and other things? So about the technology development aspect. ये तो MD साहब ही जवाब दें तो ज़्यादा बेटर है। सी गवर्नमेंट के अकेले करने से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होता है। ये मतलब कुछ पार्ट उसमें गवर्नमेंट करती है, कुछ इनिशिएटिव उसमें इंडस्ट्री लेती है, कुछ इनिशिएटिव उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स लेते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली पर से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डायरेक्टली मतलब स्टेट लेवल पे मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो रहा है। MNRE के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर जैसा आप देखेंगे जैसे थोड़े टाइम पहले इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जहाँ पे जिन लोगों की छत नहीं होती तो वो कैसे सोलर प्लांट लगाएंगे। तो इन्होंने स्टैंड अलोन एक प्लांट बनाया जिसमें फ्लैट वाले भी उसको अपनी बालकनी में रख के और उसको डायरेक्ट प्लग एंड प्ले टाइप का मतलब प्लांट आता है और उसको बालकनी में रख दो और प्लग एंड प्ले टाइप से वो आपकी सोलर पावर उससे जनरेट होना चालू हो जाती है। वैसे ही अभी जैसे आप बैटरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाया था। RREC ने सबसे पहले फागी के अंदर एक अपना सोलर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही प्रोजेक्ट लगाया। वैसे ही अभी हम सोच रहे हैं कि हम छोटा कोई मॉडल प्रोजेक्ट लगाएं पंप स्टोरेज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या बैटरी स्टोरेज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर काम हो रहा है वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ये सब मिल के और तब जाके कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। और ये कोई 1 दिन की या 2 दिन की मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब जिसको बोलते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कोई ज़माने में हमारे पास बिजली नहीं थी तो हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, फिर बिजली आई, फिर थर्मल से आई, फिर हमें लगा कि थर्मल महंगा पड़ता है या उसको अपने को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना चाहिए, तो RE कंसेप्ट पे काम हुआ। सबसे पहले उसमें विंड में काम हुआ, विंड के बाद सोलर में काम हुआ। अभी ग्रीन हाइड्रोजन कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसमें हाइड्रोजन तो वैसे ही जनरेट होगी जैसे जनरेट होती है। ओनली द सोर्स ऑफ पावर विल बी दी ग्रीन एनर्जी, द डिफरेंस इज दैट। उसमें थर्मल की जगह नॉर्मली कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होती है, सीमेंट हो गया या हाइड्रोजन जनरेशन हो गया, तो उसमें आप बॉयलर बना के उसके अंदर थर्मल एनर्जी यूज़ करते हो, कोयला डाल के अपना बॉयलर चलाते हो और उससे आप उस एनर्जी से फिर आप वो चीज़ें आगे की प्रोसेस करते हो। तो उसमें वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट विल बी चेंज एंड दैट विल नॉट बी ए न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। आप विंड पावर या सोलर पावर से आप उसको पावर करोगे एंड दैट जो हाइड्रोजन उससे जनरेट होगी दैट यू विल कॉल ग्रीन हाइड्रोजन। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड वी ऑल कंटिन्यू टू डू इट। यहाँ से एक थे सुमन जी कुछ और बताना चाहेंगे ये इंडस्ट्री से ज़्यादा। So basically I'll add to it. All over the world, if you see who does the technology development, it is basically industry academia partnership. Governments would support it. Indian government is also supporting that you certain percentage of your PAT, if you invest in R&D, then it is tax exempt. So that basic support framework is there, but it is being done led by industry and academia. I thought So I'll just complete. So basically, industry and one is base technology. So when we talk about from electrons to molecules, so hydrogen technology is there, electrolyzer is there. Do we have the resources to reinvent the wheel, and do we need to do that? I doubt that. So
क्या नितिन जी क्या Whomsoever this lady is, clearly she is not liking me. So I'll just finish with one sentence. What at RSA we have done, we are about to acquire approximately 3 to 4 acres of plot in BAP, where it is going to be hotbed of experimentation. So we have the base technology, but the use case, it will be experimented there. So Rajasthan Solar Association is already setting up a center of excellence, and for that, Nitin, our CEO, went there. The land identification is done. We are already in the process of acquiring, and there I would request all of you to contribute and support, and that will be the industry center of excellence that will work on some of the use cases related technology development in partnership with some of the IITs like IIT and other institutions of excellence. So that's how we, in our limited resources and budget, we plan to address this. थैंक यू. अब मैं A.K. जैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ एनलाइटन करें. इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है रिन्यूएबल का. बताएं क्या राजस्थान के अंदर हो सकता है. Thank you, Sunil ji. So I'm lucky to be with all of you. As Mr. Manish Gupta just told me that this was happening, so I thought of much relevance to me to be here. फ्रेंड्स, जिस RRDC की आप बात कर रहे हैं, उस RRDC ने अपने पास में बहुत ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज इनको गौरव हासिल है. कसेरा साहब, आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, रेडा होता था ये, और रेडा ने सबसे पहले एक विलेज बनाया था, नया गांव. आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर 1988. सो दैट वाज द फर्स्ट सोलराइज्ड विलेज नियर टू राजस्थान, नियर टू जयपुर. देश का पहला स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में करड़ा पोचीना विलेज में लगा था. दैट वाज ईयर 1985. सोलर वाटर पंपिंग सबसे पहले अशोक वन में जयपुर में ट्राई हुआ था, जिसका आप देख रहे हैं आज कुसुम. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी खास बात थी वो थी जो माइंड रेडा में बैठे हुए थे. मतलब उनका इतना प्रोएक्टिव अप्रोच रहता था किसी भी सोलर के आइडिया के लिए. रेडा को और नाउ RRDC को एक बात क्लियरली समझ में आ गई है कि अगर राजस्थान का विकास संभव है, अगर राजस्थान में इंडस्ट्री का आना संभव है, अगर राजस्थान रियल में एंटरप्रेन्योर बने, तो उसमें सोलर के अलावा कोई चारा नहीं है. और आज आपने जो प्रेजेंटेशन देखी है, कसेरा साहब ने जो दी है, 35 गीगावाट की पॉलिसी, मुझे ध्यान है कि 25 गीगावाट की बनी थी आज से 7 साल पहले, काम नहीं हो पाया. उसके बाद वो 35 गीगावाट की बनी, और विजन आज बिल्कुल क्लियर है. मैन्युफैक्चरिंग की हम सिर्फ बात करते थे, आज मैन्युफैक्चरिंग जयपुर में हो रही है. एक तो आपके इंसोलेशन एनर्जी ने करके बता ही दिया है, और भी कंपनीज काफ़ी आ रही हैं. मैन्युफैक्चरिंग में मैं इतनी सी बात कहूँगा, बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद मैन्युफैक्चरिंग फॉर 38 years. मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर 2 issues. वन, हम जो शुरू कर रहे हैं उसको सस्टेनेबिलिटी मिले विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज. सेकेंड इज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो आज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तो राजस्थान में सस्टेनेबल हो पा रहा है, बट इफ वी टॉक ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो सेल एंड इनगट्स अभी राजस्थान से बहुत दूर है. और यहाँ पे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, उनको बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग से अलाइन करना. आज बड़ी अच्छी बात है कि जो पैनल है यहाँ पे, हम यहाँ पे अदानी जैसी कंपनी है, यहाँ पे इंसुलेशन जैसे लोग हैं जो बाज़ार में गए और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. यहाँ पे रेस पावर जैसी कंपनी है जिन्होंने राजस्थान में अपना काम शुरू किया, और अभी ये गुड़गांव से भी ऑपरेट करते हैं. सो वी हैव मैनी मोर सच पिलर्स like Rajeshwar hai, Arun. I am seeing many people who started their journey somewhere around 12, 13, 14, 15, and today they are talking of 100 megawatt, 200 megawatt. So राजस्थान में जहाँ तक एंटरप्रेन्योर का सवाल है, कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है. RRDC का जहाँ तक सवाल है, RRDC has always been supportive
within the limits whatever they had with the ruling government. RSA का जहाँ तक सवाल है, या I see they have come a long way, and the kind of platform now they provide to their partners, it's awesome. But this is what I was thinking, and Sunil has done it. टायरलेसली काम करते हैं ये, और जिसको जहाँ से इन्हें पकड़ के लाना होता है ये पकड़ लाते हैं. अब ये सब हो तो रहा है, आप लोगों की जिम्मे क्या है? When Manishi can do it, why can't you do it? Not only manufacturing, you can see another dream. When Ketan can do it, why can't you do it? And when Rajiv ji can talk of, Rajiv Jain की बात कर रहा हूँ मैं, जो अदानी से हैं यहाँ पे, जब 20-20 गीगावाट की बात कर रहे हैं, तो आप भी एक दिन गीगावाट की बात करें. हमें राजस्थान में अपनी कैपेसिटीज़ बिल्ड करके, राजस्थान में तो काम करना ही करना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमें पूरे देश में काम करना है. और क्यों नहीं हमें पूरे विश्व के लिए काम करें? साउथ अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में इतना बड़ा काम है, और हर सेक्टर के लिए काम है. मैन्युफैक्चरिंग में हम सिर्फ मॉड्यूल सेल की क्यों सोचते हैं? हमें स्ट्रक्चर की सोचनी है, हमें इन्वर्टर्स की सोचनी है, हमें स्टोरेज जो एक बहुत बड़ी क्रिटिकल नीड आ रही है. स्टैटिक बैटरीज में बहुत काम होना है. अभी राजस्थान में सोच नहीं है उस तरह की, और ये होना ही होना है. जैसा कि कसेरा साहब ने बताया कि स्टोरेज के साथ टेंडर अब आने ही आने हैं. सो स्टोरेज इज अनदर क्रिटिकल एरिया. हाइड्रोजन के लिए बड़ी क्लियर बात हो गई, इट्स अ फ्यूचर एनर्जी, तो वहाँ भी हमें कहीं ना कहीं घुसना चाहिए. सो मोर एंटरप्रेन्योर्स वुड बी नीडेड. एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो बात होती थी डेवलपमेंट से रिलेटेड, R&D की बात की थी, तो आई थिंक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस जो मिस्टर सुमन ने बात करी थी, दैट्स अ राइट अप्रोच. पर वहाँ पे नाउ वी हैव IIT भी है, NIT भी है, एक सीरी भी है. अगर इनको तीनों को साथ में लेके अगर कुछ सोचा जाए, एंड यू नो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स एंड इवन द डेवलपर्स, they can provide some kind of fund, and RDC can also add to it. So some R&D is definitely required, and why not it should be done in Rajasthan. So that's all. Again, thanking you, Sunil ji, to put me on this panel. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर. एक नया ही पर्सपेक्टिव बताया है, चैलेंज दे दिया हमारी टीम को, राजेश्वर जी को, अरुण जी को, प्रतीक जी को, मेरे को. ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? हम थोड़ा सुस्ती में आ गए थे, वापस जोश में आ गए हम लोग. और कुछ नया करना है, लग जाओ जी सब लोग, जैन साहब का आदेश है. थैंक यू सर, पैनल हमारा बहुत शानदार था. अब मैं नितिन अग्रवाल जी, हमारे जो CEO हैं, उनको इनवाइट करता हूँ थैंक्स नोट के लिए, एंड हमारे आज जो रस्म है मोमेंटो सेरेमनी के लिए. नितिन जी जल्दी कंप्लीट करते हैं. थैंक यू सर. मेरे लिए ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं, टाइम की लिमिटेशन की वजह से कहना बहुत कुछ था. मैं सबसे पहले श्री ओम प्रकाश कसेरा जी सर MD RRCL को धन्यवाद करना चाहूँगा. उन्होंने राजस्थान को सोलर निवेश के लिए आदर्श गंतव्य बनाने पर एक अत्यंत विचारशील प्रस्तुति दी. मैं सभी पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने विशेषज्ञ विचार साझा किए और राजस्थान को सौर घटक निर्माण और व्यापक नवीनीकरण ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र के केंद्र के रूप में स्थापित करने पर अमूल्य योगदान दिया. विशेष धन्यवाद श्री सुमन कुमार चेयरमैन और श्री सुनील बंसल अध्यक्ष राजस्थान सोलर एसोसिएशन, जिन्होंने आज के सत्र का प्रभावी संचालन किया. मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मनीष सर का और केतन सर का, जो कि राजस्थान, हम बड़े प्राउड से कहते हैं कि ये कंपनीज जो हैं हमारी राजस्थान की रत्न है, तो हम प्राउड से सिर ऊंचा कर सकते हैं जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं. इसी तरीके से हमारे पास राजस्थान के अलावा इंडिया की रत्न अडानी और रिन्यू पावर के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं. तो जब हम बात करते हैं कि ये राजस्थान सोलर एसोसिएशन की फैमिली है, तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है. मैं एक विशेष धन्यवाद श्री हीरालाल नागर जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में आज ओम बिरला सर की और CM सर की एक इमीडिएट मीटिंग थी कोटा में शाम को, बट फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इस शो का इनॉग्रेशन किया. तो मैं उनका भी एक विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा. मैं शॉर्ट में अंत में हमारे दर्शकों का विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा. आपकी भागीदारी, जिज्ञासा और सवालों ने इस चर्चा को वास्तव में गतिशील और प्रभावशाली बना दिया है. मैं थोड़ा सा 1 मिनट में RSA के बारे में बताना चाहूँगा कि RSA एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन है. मैं RSA को एसोसिएशन ना मानते हुए RSA को हमेशा एक फैमिली मानता हूँ.
इस फैमिली में 600 मेंबर हैं, मोर देन 600 मेंबर्स हैं इस फैमिली में, जिसमें कि मोर देन 450 मेंबर्स MSME कंपनीज़ हैं और मोर देन 150 मेंबर्स बिग लेवल की कंपनी हैं। RSA गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में अपना अहम रोल निभाता है। RSA अपने गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस और इवेंट्स होते हैं उसमें अपना एक विशेष योगदान निभाता है। RSA राजस्थान की एनर्जी मिनिस्ट्री को और राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ RSA राजस्थान सोलर एसोसिएशन जितना भी प्राइवेट सेक्टर है जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हैं उनको एक मंच प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग ही IPO अलॉटमेंट से रह जाते हैं, बाकी सारे लोग ले जाते हैं। अंत में मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए मिलकर काम करते हैं, निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र विकसित करते हैं जहाँ राजस्थान न केवल सौर ऊर्जा उत्पादन में बल्कि नवीनीकरणीय ऊर्जा घटकों के निर्माण केंद्र के रूप में भी अग्रणी बनता है। साथ में हम मेक सोलर इन राजस्थान के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, रोजगार और एक स्थायी भविष्य का निर्माण होगा। मैं अंत में फिर सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये जो शो था इसमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग थी बिकॉज दिस इज़ RSA, और सबसे बड़ा पैनलिस्ट था बिकॉज दिस इज़ RSA। अब मैं हमारे चेयरमैन सुमन सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे विशेष अतिथि श्री ओम प्रकाश कसेरा जी को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मैं राजेश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएं और हमारे चेयरमैन सुमन सर को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मैं अरुण महिला जी को निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और हमारे केतन मेहता सर को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन के मीडिया पार्टनर मिस्टर अमित जी को, कलर एंड डिज़ाइन के मिस्टर अमित जी को अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे RK जैन साहब को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मैं रमाकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे मनोज गुप्ता जी को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मैं RRECL से मिस्टर पवन तंवर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और मनीष गुप्ता जी को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मनीष जी को मैं प्रतीक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और AU बैंक से गुप्ता जी को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। मैं RSA के जनरल मैनेजर मिस्टर सक्सेना जी को इनवाइट करूंगा कि वो मंच पर आकर इंसुलेशन एनर्जी के जैन साहब को मोमेंटो देके अनुग्रहित करें। सॉरी, मनोज गुप्ता सर को।